Dear students, you are welcome on my YouTube channel Studies on by JD सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अपन सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे थे। सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स अपन ने पढ़े। आफ्टर दैट अपन ने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करके एक डायोड बनाया इन टर्म्स ऑफ द पी एन डायोड। नाउ द टाइम्स we are just to be having the two different kind of the diodes in terms of the PN and the NP diode, and we are just to be connected them and constructed another device in terms of the transistor. As for the name, transistor exactly किस format में होगा? It is to be a three terminal transistor. It means it consists of the three terminals. Here there are the two junctions, and it is to be the combinations of the two diode. How the combinations of the two diodes are to be possible? Earlier we have discussed about the diode in terms of the PN diode or the NP diode. Now we are just to be made a PN diode plus NP diode. It means this N part is to be common. Here we are able to make PNP transistor. It is to be the transistor. When we are just to be having the opposite diodes, NP plus PN diode, then P part is to be common into both of them and we are getting out the NPN transistor. It is only point for the understanding. सिर्फ समझने के लिए, ऐसा नहीं कि अपन ने कोई भी दो PN डायोड लिया और उनको मैच कर दिया तो अपन ने एक ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया, बट इट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ द PNP और द NPN डायोड्स ट्रांजिस्टर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड. व्हेन वी आर हैविंग द डायोड्स, एक PN डायोड होगा और दूसरा उसका अपोजिट, इट मींस NP डायोड, और वी कैन से दैट कि वी आर जस्ट टू बी कंबाइन द डायोड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर अपोजिट पोलैरिटी टर्मिनल्स. इट मींस N के साथ P के साथ N को आप करेंगे तो फॉर्मुलेशंस कुछ इस प्रकार की बनेगी. देन इट इज टू बी द ट्रांजिस्टर. हियर देयर आर द थ्री टर्मिनल्स एंड द टू जंक्शंस. कैसे बने? तो अब अपन इसके बेसिक ग्राफिकल यदि स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपके पास कौन सा था? इट इज टू बी द PN डायोड. जैसे अपन इसको कंबाइन करेंगे किसके साथ? NP डायोड के साथ. इट मींस दिस पार्ट इज टू बी कॉमन. P पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे फ्रेंड्स? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे आपके पास? होल्स. एंड द माइनॉरिटी आर टू बी इलेक्ट्रॉन्स. N में क्या थे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी इलेक्ट्रॉन्स एंड द माइनॉरिटी आर होल्स. सिमिलरली इधर भी N पार्ट है. अब ये देखिए एग्जैक्ट होता कैसे? दे आर टू बी हैविंग द सेम टाइप ऑफ द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इट मींस कंसंट्रेशन भी सेम होगी, चार्ज कैरियर्स भी सेम होंगे. तो व्हेन वी आर जस्ट टू बी रिकंबाइनिंग देम तो सेम नेचर के होंगे. दैट्स व्हाई दे आर जस्ट टू बी कोलैबोरेटेड विद ईच अदर एंड दे आर टू बी मेड ए सिंगल टाइप ऑफ ए सिंगल N टाइप फॉर्मुलेशंस, by which we can just to be representing our transistor is to be like this. It is to be the P, it's the N and it's the P. Now as per the three different types of the semiconductor, here the P type of semiconductor, here the N type of semiconductor, here the P type of semiconductors, we are having the three different terminals. In this terminals it is to be known as emitter, it is the base and it is the collector. And the junctions कहाँ पे formed होता था? When the two different kind of the semiconductors are to be joined. Here we are having the two joints. It means here the P type and N type semiconductor is to be joined. That's why the first junction J1 is to be here. Again N type semiconductor is to be joined with the P type. That's why the second junction is to be here. That's why we can say that it is a three terminal two junction devices. Nominations of the terminals emitter, base and the collector, and the nominations of the junctions are to be J1 and J2, and it is the combinations of the two diodes. But diodes की जो polarity होगी it is to be opposite when we are just to be combining them. तो conclude करके यहाँ से सीधे formulation में ट्रांजिस्टर को क्या कहा जा सकता है? ट्रांजिस्टर को ये कहा जा सकता है कि कोई भी दो डायोड आपने लिए, अपोजिट पोलैरिटी में ऐड किए तो आपके पास तीन टर्मिनल्स बन गए. बिकॉज वन पार्ट इज टू बी कॉमन. यदि दो डायोड्स को अपन कनेक्ट करेंगे, वी आर हैविंग द 2 + 2 4 टर्मिनल्स, बट द वन इज टू बी टेकन आउट द कॉमन. दैट्स व्हाई हियर द थ्री टर्मिनल्स. और जो आपके पास डायोड्स होंगे उनकी फॉर्मुलेशंस किस तरीके से बनेगी? उनकी फॉर्मुलेशंस कुछ उसी प्रकार बनेगी जैसे एक डायोड में एक जंक्शन होता था. तो हियर देयर आर द टू डायोड्स. दैट्स व्हाई हियर देयर आर द टू जंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द J1 and J2.
इट इज द फॉर्मुलेशंस ऑफ द एनपीएन। यदि पीएनपी आपको बनाना है तो अपन किस तरीके से करेंगे? पीएनपी बनाने के लिए सॉरी इट इज टू बी द पीएनपी। यदि एनपीएन बनाना तो वी आर जस्ट टू बी हैविंग द फॉर्मुलेशंस लाइक दिस। इट इज योर एनपी डायोड एंड अगेन इट इज योर पीएन डायोड. Now the p part is to be combined. Here again the majority charge carriers are the holes, minority are the electrons. Here the holes and the electrons, they are to be recombined and we are getting out a transistor in terms of the NPN transistor. Next we will discuss about the basics, terminals of its and the junctions. Now as per the formulations, what are the terminals? Here there are the 3 terminals and the nominations of the terminals are to be, क्या क्या nominations है? First one is to be the emitter, second one is the base and third one is to be the collector. That's why अपन बात कर रहे हैं terminals की. Terminals of the transistor. Here there are 3 terminals. First one is the emitter, second one is the base and third one is the collector. Next the terminals emitter, base and the collector. As per their nominations, emitter क्या करेगा आपके पास? It is to be emits the charge carriers. चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होगा? Here we are talking about the majority charge carriers. It is also to be emits the minority charge carriers, but our conduction is only due to the majority charge carriers. That's why here we are just to be concluded in terms of the majority charge carriers. It means emitter जो आपके पास part होगा, suppose we are just to be constructed here. It is the P, it is the N, it is the P. It is a PNP transistor. It means this part is to be emitter, it is to be the base, it is to be the collector. Here the emitter part is to be P types. That's why the majority charge carriers are to be holes. It means its primary purpose, its function, its working क्या होगी आपके पास? It is to be emitting the charge carriers, majority charge carriers. It means यहाँ से holes आपके पास क्या होंगे? Emit होंगे और ये holes किधर जाएंगे? They are to be moved towards the N type. Reason क्या है? Why they are just to be moving? Because due to the opposite polarity. Here the majority charge carriers are to be electron, then these electrons are to be attracting these holes. ये electron इन holes को attract करेंगे. That's why these holes are to be moving towards these electrons. Now inside the base region, base का काम क्या होता है? It is like a channel part. It means it is behaving as a mediator. इसका काम सिर्फ एक mediator होता है. It is to be just taken out some commission. जैसे अपन कोई भी सामान यदि किसी से मंगवाते हैं तो थर्ड पार्टी जो भी होती हैं वो आपसे क्या लेती हैं? दे आर टू बी टेकिंग आउट सम कमीशंस. तो ऐसी फॉर्मुलेशंस यहाँ पे है कि यहाँ पे मान लीजिए कि इसने इसको 100 होल्स का एक पैकेट दिया कि भाई साहब इस 100 होल्स को आपको डिलीवर करना है कलेक्टर पार्ट तक. देन इसने अपना कुछ चार्ज कंस्ट्रक्ट कर लिया. हियर द चार्जेज आर टू बी ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द होल्स. तो ये क्या करेगा? इन होल्स में से सपोज इसने 5 होल्स को अपने पास रख लिया और फिर 95 होल्स किसको दे दिए? इसको दे दिए. इट मींस इसने अपना कमीशन ले लिया 5 होल्स की टर्म्स में. तो बेस जो रीजन होता है उसका वर्किंग क्या होती है आपके पास? इट इज जस्ट टू बी बिहेविंग एज ए चैनल. ये आपके पास इन बिटवीन एमिटर और कलेक्टर के बीच में एक चैनल का एज ए कोरियर पार्टनर का काम करता है. और उसके रेस्पेक्ट में क्या करता है? इट इज टू बी टेकन आउट द सम पार्ट ऑफ द एमिटेड चार्ज कैरियर्स. ये एग्जैक्ट सिर्फ अपन समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये जबरदस्ती आपके पास से कमीशन लेता है. ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मुलेशंस कैसी बन रही है. अपन ने जब पीएन डायोड पढ़ा था तब भी अपन ये फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी कि व्हेन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी ड्रिफ्टेड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज ए रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सेम थिंग इज टू बी हैपेंस हियर. इफ there are the base part, it means there are some electrons. Here there are holes. These holes are to be moving. If the holes are to be moving via this path, then there are some electrons are to be presented in the path. Then this hole, जो first hole होगा, it is to be recombined with the first electron. It means they are to be neutralize the effect.
बट उसके बाद के जो होल्स होंगे दे आर टू बी मूविंग. If there are the 2 electrons, it means they are just to be recombined with 2 holes. Rest the holes are to be moving like this. It means the primary work of the base part, it is to be the recombinations are to be take place that. Now the next formulations, collector. What are the workings of the collector? Exactly collector का काम क्या है? As per its nominations, its work is to be just collect the charge carriers. They are to be emitted by the emitter. Passes through the base. It means अब जो बेस को पास करने के बाद जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो मूव कर गए वहां तक, उन सबको क्या करना? कलेक्ट करना. तो यदि सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एमिटर का काम है एमिट करना. इसका मतलब चार्ज कैरियर्स को स्टार्ट करना, चार्ज कैरियर्स को एमिट करना, चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस करना. नेक्स्ट बेस का काम है सिर्फ उनको पाथ देना एंड द कलेक्टर का पार्ट है उन सबको कलेक्ट करना. इट्स आर द वर्किंग्स. Now we are just to be considering the 2 parameters. One is to be the size, another is to be the doping. As per their size and their dopings, we are having the formulations. It means the relations between the emitter, base and the collector. First we will discuss about the size. Here in terms of the size, collector is to be having the maximum size, emitter is to be the less than collector but greater than base and the base has the least size. ये ऑर्डर अपने लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड समटाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द रिलेशंस in terms of the size in between the emitter, base and the collector. Here why we are just to be taken out the collector largest. collector को सबसे largest क्यों लिया है? Its size is greatest as compared to the emitter and base. Next, why we are taking out the emitter as the moderate level size and why we are taking out the base least size? Reason क्या है? First thing, when we are talking about the collector, जब अपन collector के बारे में देखते हैं, its basic purpose, क्या purpose था इसका? Its basic purpose is just to be collecting, मतलब जो आ रहा है सारा gather कर लो. तो ये कब possible होगा? When its size is to be greater as compared to the emitter and a base. If its size is to be equal to the base or less than base, then it may be possible कि some charge carriers are not to be collected by this collector. तो अपना मेन मोटिव क्या है कि जितने भी चार्ज कैरियर्स आए वो सारे कलेक्टेड हो जाए. That's why it has the greatest size. Next, the size of the emitter, it is to be moderate, means less than the collector but greater than the base. Reason अपन ने moderate क्यों ली है? First thing, its size. रीजन द वर्किंग ऑफ इट्स, इसकी वर्किंग क्या थी, इसका काम क्या था? टू एमिट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. यदि अपन इसकी साइज को स्मॉलर ले लेंगे तो कितने चार्ज कैरियर एमिट कर देगा? इट मींस इट इज नॉट टू बी एबल टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स दैट्स आर टू बी नीडेड टू द कंडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आउट द साइज ग्रेटर देन द बेस. बट व्हाई वी आर टेकिंग आउट द लेस देन कलेक्टर? If the size of the emitter are to be greater than the collector, it means it is definitely to be produce large number of the charge carriers, and due to the smaller size, the collector not able to collect all these charge carriers. It means some charge carriers are to be wasted. And when we are invented any device in terms of the electronics, our basic purpose is to be make that device in terms of the ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. इट मींस उसकी एफिशिएंसी को अपन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. हियर दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आउट द एमिटर एज द मॉडरेट साइज. नाउ द लास्ट, व्हाई वी आर टेकिंग आउट द बेस एज द लीस्ट साइज. बेस को सबसे छोटा क्यों लिया गया? द रीजन बिल्कुल क्लियर है. द बेस पार्ट इट इज टू बी द रिकॉम्बिनेशन प्लेस और इट इज टू बी बिहेविंग एज ए कमीशन एजेंट. तो यदि आप कुछ भी प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं तो आप कौन से को प्रीफर करेंगे? मैक्सिमम कमीशन वाले को या मिनिमम कमीशन वाले को? वी आर ऑलवेज प्रीफर्ड द मिनिमम कमीशन. जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि बेस की साइज क्या थी? मिनिमम थी. दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ द साइज क्या रहा आपके पास? कलेक्टर सबसे ग्रेटेस्ट साइज का था, एमिटर मॉडरेट साइज का था, बेस इट इज टू बी द मिनिमम साइज. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द डॉपिंग, कि उसकी डॉपिंग जो होगी कौन से पार्ट की ग्रेटर होगी, कौन से की लेसर होगी, कौन से की मॉडरेट होगी. हियर द ऑर्डर इज टू बी एमिटर, कलेक्टर एंड द बेस.
It means the emitter has the greatest doping, collector has the moderate doping and the base has the less doping. क्लियर है? ऑर्डर अपन को याद रह जाएगा, एग्जाम्स में यही पूछा जाएगा. बट द माई मोटिव इज टू बी बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स. यदि एक बार आपने कॉन्सेप्ट के साथ इन चीजों को समझ लिया, यू आर नेवर टू बी फॉरगेट दीज थिंग्स. तो चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि वाई वी आर टेकिंग आउट द एमिटर एज द ग्रेटेस्ट डोपिंग. एमिटर की डोपिंग सबसे हाईएस्ट क्यों ली गई? द रीजंस, द वर्किंग ऑफ द एमिटर. एमिटर का काम क्या था? टू एमिट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एमिट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट मींस ये जितने ज्यादा एमिट करेगा उतनी ही आपके ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. इफ यू आर टेकिंग आउट द एमिटर एज द लिस्ट डोपिंग, यदि आप डोपिंग को कम कर देते हैं, इट मींस इट इज नॉट टू बी एबल टू जनरेट और एमिट्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब ये उतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स को जनरेट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई some of the charge carriers are to be recombined at the base part and rest are to be moved to the collector part. In this process, the conductivity of our transistor is to be decreases. That's why we have taken out the emitter is to be the highest doping level. Next, the collector. Collector doping level, it is to be less than the emitter but greater than the base. Why we are taken out? As per the formulations, यदि आप देखें PNP and PN, they are to be the transistor P part and the P part, N part and the N part. It means emitter and the collector. Emitter and collector, they are to be having the same polarity. इन दोनों की polarity और the nature are to be same. दोनों का nature same है. If you are just to be increasing the doping level of the collector part, यदि आप इसके doping level को increase कर देंगे, that's why there are मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी जनरेटेड. तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लाइक यहाँ पे होल्स ज्यादा हो गए. जो होल्स यहाँ से आ रहे थे, सम ऑफ देम आर टू बी रिकम्बाइंड एट द बेस पार्ट, रेस्ट आर टू बी मूव्ड टू द कलेक्टर पार्ट. नाउ दीज होल्स आर टू बी रिपेलिंग दीज होल्स. दैट्स व्हाई आवर मोटिव इज टू बी कि ये यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जितने एमिट हुए, दे आर टू बी मूव्ड टुवर्ड्स द कलेक्टर. जब ये कलेक्टर पे कलेक्ट होंगे, इट मींस आवर ट्रांजिस्टर इज टू बी इन ऑपरेटिंग स्टेज. नाउ इफ there are the majority charge carriers are to be maximized into the collector part, then these charge carriers are to be repelling the charge carriers that are to be came from the emitter part. और यदि वो repel करेंगे, it means जो आपके पास conductivity of the transistor is to be decreases. That's why to minimize that particular repulsion force, we are just to be taking out the collector doping. It is to be less than the emitter. And the last one is why we are taking out the base as the least doping. The same formulations in priorly we are discussed about it. We are just to be considering the minimum commission agent. Here we are considering minimum number of the recombinations. If we are increasing the doping of the base part, then the greatest or the greater part of the emitted charge carriers are to be recombined at that particular place. मान लीजिए 100 आपके पास चार्ज कैरियर जनरेट हुए और बेस पार्ट की डोपिंग आपने अच्छी खासी कर रखी है, देन मोर देन 50% ऑफ द चार्ज कैरियर्स आर टू बी रिकम्बाइंड एंड ओनली द लेस देन 50% चार्ज कैरियर्स आर टू बी एबल टू मूव अप टू द कलेक्टर पार्ट. इट मींस आवर डिवाइस एफिशिएंसी इज टू बी लेस देन 50%. दैट्स व्हाई द डोपिंग ऑफ द बेस पार्ट इज टू बी लिस्ट. तो डायरेक्टली याद रखना है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्टर, एमिटर, बेस. On the point of view, the doping, emitter, collector and the base. These are the basics in terms of the terminals. Now we are just to be moving upon the junction part. Here we are having the two junctions J1 and J2. Now we are just to be considering the names of their junction and their operations, how they are just to be used. Here we are just to be considering a particular transistor. Here it is to be the P, N and P. It's the your emitter part, it your base part and it is to be your collector part. Clear? Okay. Now here we are considering the junction J1, it is to be the junction J2. It means first जब आपने एक PN डायोड का जो जंक्शन था उसको डायरेक्टली एज इट इज यूज किया है और सेकंड जो आपके पास NP डायोड में जो जंक्शन था उसको भी एज इट इज यूज किया है. N part is to be common, that's why both the junctions are to be on the boundaries of the N part. Clear? Now as per their nominations, ये जंक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है? This terminal and this terminal. That's why J1 is to be represented in terms of the emitter base junction. It is to be known as emitter base junction.
एंड द सेकंड जंक्शन किस किस पार्ट को कनेक्ट कर रहा है? इट इज टू बी कनेक्टिंग द बेस एंड द कलेक्टर पार्ट्स, दैट्स व्हाई द जंक्शन J2 is to be considered in terms of the collector base junction. क्लियर? J1 एंड J2 की फॉर्मुलेशन फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनेंगे। यदि एक बार आपको डायोड्स की फंक्शनिंग प्रॉपर है, जंक्शंस का पता है, तो वी कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। हियर द जंक्शन J1 एंड J2। नाउ द पॉसिबल केसेस ऑफ द जंक्शन J1 एंड J2। आप देखिए, आप J1 और J2 को फॉर्मुलेट करें तो किस फॉर्म में रख सकते हैं? दे आर टू बी बोथ इन फॉरवर्ड बायस, it is to be in forward bias, it is to be in reverse bias, it is to be in reverse bias, it is to be in forward bias, and both are in reverse bias. It is to be the functioning of the J1 and J2. Now the results. When the junction J1 and J2 they are to be in forward bias. क्या ये केस आपके पास पॉसिबल है? फर्स्ट थिंग तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, बोथ द जंक्शन आर टू बी इन फॉरवर्ड बायस। इट मींस यहां से P से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स जनरेट होंगे और वो होल्स इधर मूव करेंगे। इफ दिस जंक्शन इज आल्सो टू बी इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? इसको पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, सिमिलरली इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से अपन ने कनेक्ट किया। Now the formulation, this positive terminal of the battery is just to be repelling the majority charge carriers into the P part. तो ये इन होल्स को रिपेल करेगा। सिमिलर दिस पार्ट इज टू बी रिपेलिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम दिस पार्ट। तो यहाँ से जो होल्स होंगे वो इधर मूव करेंगे, यहाँ से जो होल्स होंगे वो इधर मूव करेंगे। क्या आपका डायोड नॉर्मली कंडक्ट कर पाएगा? नो, इट इज नॉट टू बी द कंडक्शन स्टेज ऑफ द डायोड, इट इज टू बी नोन एज द सैचुरेशन स्टेज ऑफ द डायोड। इट मीन्स in this function your transistor in saturation state. Now in second case, junction J1 is to be in forward bias and junction J2 is in reverse bias. ये वाला forward में it means it is to be the same connection, it is to be in reverse, that's why the polarities are to be changed. ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। Now the functions are to be, यहां से जो पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर टू बी रिपेल्ड टुवर्ड्स द एन पार्ट, बेस पार्ट की तरफ उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, दे आर टू बी मूविंग। इट मींस ड्यू टू दिस पॉजिटिव पोलैरिटी a repulsion force upon the positive charge carriers holes into that particular p part. तो ये holes किधर मूव करेंगे? They are to be moving towards the end part. Now at that particular collector part, it is to be positive, it is negative. It means their majority charge carriers are to be moved towards this. अब यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे होंगे होल्स, दे आर टू बी मूविंग विद ए स्पीड एंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस जैसे वो कलेक्टर पार्ट पे आएंगे, देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट मींस देयर मोमेंट्स आर टू बी इंक्रीज्ड। देयर इज द रिपल्शन फोर्स, जो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स था फॉरवर्ड बायस की वजह से, इट इज टू बी नेग्लेक्टेड, इट इज टू बी मिनिमाइज्ड। That's why our diode is to be, our transistor is to be in the conducting stage. So it is to be the conducting stage. जो नॉर्मली अपन प्रिफर करेंगे, इट इज टू बी द स्टेट व्हेन द डायोड जंक्शन J1 इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस एंड J2 इज टू बी इन रिवर्स बायस। प्रैक्टिकलिटी में जब भी अपन ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं तो वी आर जस्ट टू बी यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन हियर। नाउ द नेक्स्ट थर्ड फॉर्मुलेशंस, जंक्शन J1 इज टू बी इन रिवर्स बायस, जंक्शन J2 इन फॉरवर्ड बायस। अब देखिए अपन ने J1 को रिवर्स में कर दिया, इट मींस द पोलैरिटीज आर टू बी चेंज्ड। रिवर्स का मतलब P किस में कनेक्ट करूंगा? नेगेटिव से, एंड N इज टू बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव। फॉरवर्ड में कनेक्ट करना, इट मींस मैं इसको किससे कनेक्ट करूंगा? P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। तो इट इज टू बी माइनस प्लस, इट इज आल्सो द माइनस प्लस। नाउ द फर्स्ट थिंग, the emitter part, working of the emitter part is to be emit the majority charge carriers. Here the negative polarity of the battery, it means the majority charge carriers holes are to be attracted towards this. तो यहाँ पे जो charge carriers emit हुए, they are to be attracted by the battery polarity. It means they are not to be moving into the base part. Now move on the second junction J2 P. It means it is the positive polarity. It means these holes are to be just to be repelled by the positive terminal of the battery. ये repelled होंगे, it means these holes are to be moving like this.
तो अब यहां से एग्जैक्ट वर्किंग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पहले आपके पास इस वाले पार्ट से इधर की तरफ अपन मूव कर रहे थे। इट मींस ये एमिटर पार्ट था, इसका फंक्शन था चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। बीच में आपके पास ये कमीशन एजेंट था और यहाँ पे उसने कलेक्ट कर लिया। हियर ड्यू टू द अपोजिट पोलैरिटी, ड्यू टू द रिवर्स बाइसिंग ऑफ द जंक्शन J1, ये इधर एमिट नहीं कर रहा, सारे चार्ज कैरियर्स किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल। बट हियर यहाँ पे इसका काम था कलेक्ट करना, इट इज टू बी एमिटिंग बिकॉज यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है। ड्यू टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देयर इज a repulsion force and these positive charge carriers are to be moving towards the base. अब ये बेस में जाएंगे, देन बेस पार्ट की अपोजिट पोलैरिटी है, दैट्स व्हाई देयर इज अट्रैक्शन फोर्स एंड दे आर टू बी मूव्ड इनटू द एमिटर पार्ट। इट मींस इट इज टू बी द इनवर्स कंडक्टिंग स्टेज। ये कौन सी होगी, इनवर्स स्टेज होगी। इनवर्स कंडक्टिंग स्टेट क्यों बोला गया, बिकॉज इन दिस केस the emitter part is to be changed into the collector part and the collector part is to be changed into the emitter। तो हुआ क्या है स्टूडेंट्स, एमिटर कलेक्टर बन गया और कलेक्टर क्या बन गया, एमिटर बन गया। तो देखिए एग्जैक्टली फॉर्मुलेशंस अपन को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ इसी को यूज करना है। यदि अपन इस तरीके से करने लग जाएंगे तो मोस्ट कॉमनली अपना स्टडी का पैटर्न यही रहता है, पढ़ा कुछ उसको लिंक कहीं और करते हैं। तो बी क्लियर कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट वी आर जस्ट टू बी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ केस, बोथ आर टू बी इन रिवर्स बायस। इट इज टू बी आल्सो इन रिवर्स बायस। हियर फॉर द रिवर्स बायस वी आर जस्ट टू बी चेंजिंग द पोलैरिटीज ऑफ इट। इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। हियर इट इज टू बी पॉजिटिव, इट इज टू बी नेगेटिव। अब देखिए फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी। ड्यू टू दिस रिवर्स बायसिंग the majority charge carriers into this p type, it means emitter में जितने emits हुए they are to be attracted by the terminals of a battery। Here the same formulations, here the holes are to be generated but these holes are to be attracted by the negative terminal of the battery। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे, उनको इसने अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ वालों को इसने अट्रैक्ट कर लिया। क्या कोई चार्ज कैरियर आपके पास बेस पार्ट में से जाएगा, नहीं जाएगा। इट मींस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिस्टर। मूवमेंट तो हो रहा है बट दिस मूवमेंट इज टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल्स, इट इज नॉट टू बी टुवर्ड्स द इनसाइड दैट पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर। दैट्स व्हाई इट इज टू बी द नॉन कंडक्टिंग स्टेज और द कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ, इट मींस आवर ट्रांजिस्टर इज टू बी इन द कट ऑफ रीजन, इट मींस इट इज नॉट टू बी कंडक्टिंग। तो यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं करेगा। In this case it is to be conducting, in this case it is also to be conducting but the emitter and the collector are to be changed। In case of the both forwarding bias our diode is to be in saturation region। ये सारे पैरामीटर जब अपन ट्रांजिस्टर का क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो हियर द जंक्शन J1 and J2 they are to be connected in the four manners, forward forward, forward reverse, reverse forward, reverse reverse। In case of the forward forward they are to be in saturation, it means ट्रांजिस्टर को अपन प्रैक्टिकलिटी में यूज नहीं ले सकते। They are to be in the forward reverse, it means transistor is to be in conducting and we can able to operate it into the circuitry। Reverse forward, in this case practicality in practicality we are not to be able to use it because when we are just to be manufacture the transistor, the emitter, collector and the base part is to be predefined। That's why during process if we are just to be changing the emitter and the collector part, then the functioning of the transistor are to be just opposite। In case of the reverse bias our transistor is not to be conducting, यदि कोई conduct ही नहीं करना then why we are just to be using this component into our circuitry। तो ये था आपके पास जंक्शंस के रेस्पेक्ट में। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, कंडक्शन इनटू द ट्रांजिस्टर।